अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बिल्किस बानो ज़ियारती केस के खातियों की रिहाई का फैसला शर्मनाक। ख़वातीन की इज्जत व एहतराम की बातें करने वाले वज़ीर आज़म मदाखलत करें, KTR का ट्वीट। आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के तहत आज रियासत भर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। तेलंगाना भवन में MLC कविता ने किया फ़ोन का अतिया। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का महंगाई चौपाल आज से शुरू। मोदी हुकूमत की नाकामयाबियों को उजागर करेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र के डोंडिया के पास मुसाफिर ट्रेन पटरियों से उतर गई, 50 से ज्यादा जख्मी, इमदादी काम जारी। आइए अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेजी 11 अफराद के कत्ल में मुलविस खातियों को रिहा करने के फैसले पर तेलंगाना के वजीर KTR ने हैरत का इजहार किया। इस इशू पर उन्होंने आज ट्वीट करते हुए वजीर आज़म मोदी से अपील की कि औरतों की इज्जत व एहतराम की जो बातें आपने कही हैं, अगर वाकई इतना दर्द है तो फिर बिल्किस बानो केस के खातियों की रिहाई को रुकवा दें, जिन्हें रिहा करने के लिए गुजरात हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। इस्मत रेजी के खातियों को जमानत न मिले, इसके लिए IPC CRPC में इस्लाहात लाने की भी KTR ने ज़रूरत जताई। आज़ादी की डायमंड जुबली की 15 रोज़ा तवील तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज रियासत भर में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्कद किए जा रहे हैं। TRS पार्टी के मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का MLC कविता ने इफ्तिताह किया और खून का अतिया भी दिया। कविता ने इस मौके पर मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीदें की। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में गरीबी जिस कदर तेजी से बढ़ रही है, इसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। इस मौके पर TRS के दीगर कायदीन और कारकुनों के अलावा तेलंगाना जागृति के लोग भी मौजूद थे। కాలేజ్ పిల్లలు అందరూ కూడా పాల్గొని తమ వంతుగా వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో హైదరాబాద్ నగర TRS పార్టీ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ భవన్లో జరుగుతున్నటువంటి రక్తదాన శిబిరంలో భాగంగా పాల్గొని మరి రక్తదానం చేయడం జరిగింది। భారతదేశ స్వాతంత్రానికి సంబంధించి 75 వసంతాలు నిండినటువంటి సందర్భంలో మన భారత పౌరులుగా మనందరం కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి, ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి, ఈ పరిస్థితులు మారడానికి పౌరులుగా ప్రజలుగా మనవంతుగా మనం ఏం చేయాలనేటటువంటి సమీక్ష చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। 75 వసంతాలు అంటే వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మనందరం కూడా దేశ అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడి పునరంకితం అవ్వాల్సినటువంటి సందర్భం ఇది। ఇవాళ మనం ఆలోచించుకున్నట్టయితే భారతదేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైన సమస్యల్లో ప్రధానమైనది పేదరికం, నిరుద్యోగం, అదేవిధంగా మతతత్వం। ఇవన్నిటిని కూడా మనం సమూలంగా రూపుమాపుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా 100 సంవత్సరాలు భారతదేశానికి స్వాతంత్రానికి నిండే లోపల మనం భారతదేశం ప్రపంచంలో నంబర్ 1 శక్తిగా ఎదిగేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది। ఒక పక్క ఆర్థిక శక్తిగా, ఇంకొక పక్క మొత్తం యావత్ ప్రపంచానికి కూడా దారి చూపించేటటువంటి ఒక నైతిక శక్తిగా భారత్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ స్థానాన్ని సుస్థిరపరచుకునేటటువంటి సందర్భం కూడా ఉంటుంది। కాబట్టి దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి, దేశం బాగుండాలంటే ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలి, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా బాగుండాలి। అటువంటి ఒక సమానత్వం ఉన్నటువంటి సొసైటీని నిర్మించాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరికీ ఉన్నది। ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు తెలంగాణలో చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా అమలైనటువంటి నాడు మాత్రమే భారతదేశానికి నిజంగా స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి రోజు వస్తుంది। కాబట్టి మేమందరం కూడా TRS పార్టీ నుంచి మరొకసారి 75 సంవత్సరాలు నిండినటువంటి సందర్భంలో భారతదేశం యొక్క సేవ కోసం, అభ్యున్నతి కోసం, అభివృద్ధి కోసం पुनरंकित जय तेलंगाना। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता कल विकाराबाद कलेक्ट्रेट के इहाते में जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना रियासत की तरक्की खुशहाली को बयान किया। साथ में मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की है। वजीर आला ने कहा कि पिछले 8 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम साबित हुई, इसके बावजूद उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। मुल्क के कॉरपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही काम करने का भी मोदी हुकूमत पर रास्त इल्ज़ाम लगाया। మిగిలిన 2 ఏళ్ల కోసమని మనం చెప్తారేమో ఆశతో విన్నా నేను కూడా। ఏమీ లేదు, గంట సేపు మాట్లాడి ఊదర కొడితే ఏమీ లేదు।
ఒక్క మాట ఉందా? మీరు వినలేదా? ఏమైనా వచ్చిందా ప్రజలకు? ఓ పథకం వచ్చిందా? అంత గుంపులో గోవిందా గాల్లో నెత్తికో రుమాలు కట్టి వేషము, ఓ కథ, డైలాగులు తప్ప ఒక్క మంచి మాట ఉందా దేశానికి? ఇదేనా మాకు కావాల్సిన దేశానికి? అందుకే నేను మాట్లాడుతా ఉన్నాను. దయచేసి మీరందరూ కూడా చైతన్యవంతులు కావాలి. రాష్ట్రంలో మనం ఎంత బాగున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం బాగలేకపోతే కూడా ఆశించిన ప్రకారం అభివృద్ధి కాదు. కాబట్టి కేంద్రంలో కూడా రాష్ట్రాల హక్కులను గౌరవించేటువంటి, ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని చూసేటువంటి ఉత్తమమైన ప్రభుత్వం రావాలి. ఆ దిశగా కూడా మనం తయారు కావాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా. దేశ పరిస్థితి దిగజారుతూ ఉంది, నిరుద్యోగం పెరుగుతూ ఉంది, రూపాయి విలువ పడిపోతూ ఉంది, ఏనాడు లేనటువంటి పరిస్థితులు వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి నేను మీ అందరినీ కోరేది, బ్రహ్మాండంగా మనందరం ఇప్పుడున్న కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఇంటికి సాగనంపి మంచి ప్రభుత్వం, ప్రజల ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చే దాంట్లో కూడా మనం అందరం భాగస్వాములు కావాలని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా. ఈ రకంగా చెప్పానంటే చాలా విషయాలున్నాయి. నేను ఒకటే మాట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నా, ప్రధానమంత్రి చెప్పిన ఏ ఒక్క వాగ్దానం కూడా నెరవేర్చబడలేదు. 15 లక్షలు ఇస్తామంటే ఎవరికి 15 పైసలు రాలే. ఏదో కళ్ళబొలి కథలు చెప్తే ఏమి రాలే. ఈరోజు మీ అందరు నేను కోరేది ఒకటే, ఇటువంటి దుర్మార్గులను తరిమి కొట్టి ఒక అద్భుతమైన భారతదేశాన్ని మనం నిర్ణయించుకోవాలి, మనం ముందుకు తీసుకుపోవాలి. ఆ రకంగా మనం తయారు కావాలి. चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीम गरीब खानदानों के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित हो रही है। महंगे इलाजों के इस ज़माने में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए मुस्तहकीन की हुकूमत मुमकिन मदद कर रही है। जगतियाल शहर के मोहल्लागंज वार्ड 43 की रहने वाली एक 8 साल कमसीन बच्ची ज़ूबिया इरम का लीवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया गया था। इस इलाज में बच्ची के माँ बाप ने लाखों रुपये लगा दिए। हुकूमत की जानिब से CMRF के तहत 3 लाख रुपये बच्ची के इलाज के अखराजात की बाबत में मंजूर किए गए। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने ज़ूबिया इरम के घर पहुंचकर 3 लाख रुपयों का चेक बच्ची के वालिद के हवाले किया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल खादर मुजाहिद सदर अखिलती सेल TRS पार्टी, मोहम्मद अब्दुल बारी सदर मिल्लत इस्लामिया जगतियाल, मोहम्मद यूनुस नदीम सदर इब्तिदाई मजलिस, अमीनुल हसन, MA मोहसिन, मोहम्मद अंसारी काउंसलर, फिरदौस तरन्नुम व दीगर मौजूद थे। मिनी आई हॉस्पिटल दारुशफा ब्रांच के नए मुकाम पर मुंतकली और मिनी आई हॉस्पिटल स्ट्रीलिंग डायग्नोस्ट पॉली क्लिनिक एंड डे केयर सेंटर के इफ्तिताह की खुशी के मौके पर दोनों अस्पतालों की इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक से रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया था। 13, 14, 15 अगस्त के दिन मुनक़िदा इस फ्री मेडिकल कैंप से 4000 लोगों ने इस्तिफ़ादा किया। मरीजों के मुफ्त तशख़ीस व मुआयने के अलावा कमज़ोर नज़र वालों में मुफ्त आइनके भी तक़सीम किए गए। डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान आई सर्जन, अब्बास हैदर जनरल फिजिशियन, डॉक्टर अकबर अली, डॉक्टर अजीम, डॉक्टर पारिक, डॉक्टर अस्मा, डॉक्टर साजिद खान ने मुख्तलिफ तरह से अमराज की तशख़ीस करके दवाएँ तजवीज़ की, जबकि डॉक्टर हिदायतुल्लाह, डॉक्टर मुकरम और डॉक्टर अरशद ने अमराज चश्म में मुब्तला सैकड़ों मरीज़ों का मुआयना करते हुए कैफियत के मुताबिक आगे का इलाज तजवीज़ किया। इस मौके पर बात करते हुए कैंप के इनेकाद को कामयाब बनाने में ताउन करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। तो कैंप का इनेकाद हुआ 13, 14 और 15 अगस्त को, जिसमें तकरीबन 4000 लोगों ने शिरकत की और जिसमें तकरीबन 2500 आँखों के मरीज़ रहे और बाकी के जो मरीज़ ओवरलैपिंग रहे। स्टर्लिंग डायग्नोस्टिक के जो जनरल मेडिकल चेकअप था और आँखों का भी चेकअप था। तो तकरीबन जो है हम लोग जो ब्लड टेस्ट किए हैं स्टर्लिंग डायग्नोस्टिक के तहत जो ब्लड टेस्ट हुए हैं वो जो तकरीबन 2900 मरीज़ों का जो है ब्लड टेस्ट फ्री किया गया और ये रिपोर्ट्स इंशाअल्लाह कल या परसों से जारी होना शुरू हो जाएंगे। और एक अवामुन नास से ये दरख्वास्त है कि वो जो रिपोर्ट कलेक्ट करने के बाद अगर किसी किस्म की बीमारी पाई जाती है तो वो मज़ीद फॉलोअप के लिए हमारे फिजिशंस यहाँ पर स्टर्लिंग डायग्नोस्टिक सेंटर में रुजू हो सकते हैं। तो और आँखों के मरीज़ों का जहाँ तक सवाल है, तकरीबन 2500 मरीज़ों में जो है 1500 लोगों की नज़र कमज़ोर पाई गई और उन सारे 1500 मरीज़ों को हमने मुफ्त ऐनकें फ़राहम की अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीबन पूरे मरीज़ों को मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान साहब के ज़ेर निगरानी में जो कैंप हम लोग किए थे उसमें तकरीबन 2500 के ऊपर लोग आँखों के अमराज के लोग जो है
फ़ायदा उठाए हैं और उसमें से तकरीबन जो है 100 लोगों को मोतियाबिंद पाया गया। उनको भी जो है ऑपरेशन का मशवरा दिया गया है और हम लोगों ने तकरीबन 1500 लोगों को फ्री मुफ्त में जो है ऐनकें बांटी हैं। उसको भी कुछ बीमारी आँखों में पाई गई है, उसको भी जो है आई ड्रॉप्स और दवाइयाँ टैबलेट्स वगैरह हर चीज़ दिए गए हैं। मैं वहीदुल्ला खान स्टर्लिंग डायग्नोस्टिक पॉलीक्लिनिक डे केयर एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो लोग शिरकत करे हैं और इस कैंप को कामयाब करे हैं। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से मनाए जा रहे वजरा उस्तवालू के तहत कल रियासत भर में कौमी तराना पढ़ा गया था। हैदराबाद के मौला अली कमान के पास मुनक़िदा जना गण मन प्रोग्राम में हज़ारों लोग शरीक थे, जिनमें सियासी कायदीन, पुलिस, तलबा और अवाम ने भी जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నేషనల్ యాంథమ్ వచ్చినప్పుడు ఏ ఒక్క పర్సన్ కూడా కూర్చోవద్దు దయచేసి. కార్యక్రమానికి మల్కాజ్గిరి మరియు మౌలాలు అతిపెద్ద సంఖ్యలో జనాలు హాజరయ్యి గీతాలాపనకి అందరూ కూడా సామూహికంగా గీతాలాపనలో పాల్గొనడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ అంతా ఒకటే, మీ అందరూ మౌలాలిలో మీ అందరం ఒకటే, మౌలాలికి మతంతో సంబంధం లేదు, మౌలాలి అంతా ఒకటే అని నిరూపిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీని యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేశారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా धन्यवाद। हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान की खुदकुशी का वाक़या पेश आया है। 26 बरस के नागार्जुन ने घर में जब कोई मौजूद नहीं था तब ये इंतहाई इक़दाम किया। बताया गया है कि नागार्जुन चंपापेट के डी मार्च में मुलाजिम था। मुसलसल नासाजगार सेहत इस इंतहाई इक़दाम की वजह बताई जा रही है। उसने अपने खुदकुश नोट में अपनी माँ और बाप दोनों से माफ़ी मांगी। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए नाश उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करके पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने इसकी मजीद छानबीन शुरू कर दी है। जिले निर्मल के भैंसा शहर में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब के हिस्से के तौर पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़द रहा। भैंसा एरिया अस्पताल में मुनक़्क़दा खून का अतिया कैंप में अस्पताल सुपरवाइज़र, बल्दिया कमिश्नर और दीगर शरीक थे। मुकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से खून का अतिया करने की फितरी ज़रूरत, इसके फ़वाइद से भी आवाम को वाकिफ़ करवाया गया। मुल्क में बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर मोदी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज से एक हफ्ते तक मुल्क भर में महंगाई चौपाल के नाम से बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू कर दी गई है। पार्टी की तर्जुमान अलका लांबा ने मीडिया से बात करते हुए इससे मुतालिक कहा कि देश भर में महंगाई हुकूमत के काबू से बाहर है और हुक्मरान तबके को गरीब आवाम की कोई फिक्र नहीं है। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक तहरीक चलेगी। इस तहरीक के अख्तिताम के बाद 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक अजीम उश्शान जलसा मुनक़्क़द करने का भी कांग्रेस का इरादा है। जनगांव शहर में कल रात देर गए कत्ल की वारदात पेश आई है। हनमकुंडा रोड पर वाक़ गुरुद्वारे के पास फ़कीर सुरेश नामी शख्स का बेरहमी से गला काट कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि सुरेश के दोस्त संदीप ने ही तेज़धारी हथियार से अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। बताया गया कि दोनों दोस्तों ने साथ मिलकर शराब पी। इसके बाद खानदानी बातों को लेकर बहस हुई, जिसमें संदीप ने सुरेश का कत्ल कर दिया और फिर पुलिस के सामने खुद सिपुर्द भी हो गया है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस केस की तहकीकात कर रही है।
महाराष्ट्र के गोंदिया में रेल हादसा हुआ है। रायपुर नागपुर रोड पर मुसाफिर ट्रेन पटरियों से उतर गई, जिसके नतीजे में 50 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। मुकामी अफराद और इंतजामिया ने इमदादी काम अंजाम देते हुए जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि रात करीब 2:30 बजे के आसपास ट्रेन की 3 बोगियां पटरियों से उतर गईं। इस हादसे में किसी के भी मरने की इत्तला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल रवां हफ्ते यूक्रेन का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने बताया कि एंटोनियो गुटेरेस अपने दौरे के दौरान यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात करेंगे। मशरक़ी यूक्रेन के जौहरी प्लांट के करीब रूसी तैयारों की बमबारी के इल्ज़ामात के बाद इम्कान है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल यूक्रेनी सदर से अपनी मुलाकात में इस इशू पर भी सियासी हल के मुमकिन इम्कानात पर बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल इस्तांबुल में रूस यूक्रेन मुआहदे की पासदारी के लिए कायम किए गए मुश्तरका राब्ता मरकज का भी दौरा करेंगे, जहां फरीकैन के नुमाइंदगान बहर अस्वद के रास्ते यूक्रेनी गंदम और खाद के बरामदात की निगरानी करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इत्तेहादी ममालिक को जदीद तरीन हथियारों की फरोख्त की पेशकश की है। साथ ही साथ ये भी कहा कि इत्तेहादी ममालिक से फौजी टेक्नोलॉजी की तैयारी में भी ताउन किया जाएगा। गुज़िश्ता कल दारुल हुकूमत मास्को में असलहे की नुमाइश का रूसी सदर ने इफ्तिताह किया। पुतिन ने हथियारों की नुमाइश तकरीब में तकरीर करते हुए कहा है कि रूस के हथियार दीगर ममालिक के हथियारों से ज़्यादा बेहतर हैं। उन्होंने बताया कि लातीनी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका से रूस के ताल्लुकात मजबूत हैं और हम अपने शिराकतदारों और इत्तेहादियों को जदीद तरीन हथियार फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम छोटे हथियारों से लेकर लड़ाका तैयारी, ड्रोन्स और दीगर हथियार इत्तेहादियों को फराहम कर सकते हैं। रूस की तमाम तर कोशिशें अपने मुख्तलिफ इत्तेहादियों जैसे चीन, ईरान और दीगर से ताउन बढ़ाने की मुहिम का हिस्सा है, ताकि अमेरिकी बालादस्ती को ख़त्म किया जा सके। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारे साथ मुतादिद हम ख्याल इत्तेहादी और शिराकतदार ममालिक हैं, उनकी क़यादत किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। जनूबी कोरिया और अमेरिका की मुश्तरका अफवाज ने अगले हफ्ते शुरू होने वाली अपनी बड़ी मुश्तरका मशक़ों से कबल मंगल से 4 रोज़ा इब्तिदाई मशक़ें शुरू कर दी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक दोनों इत्तेहादी ममालिक 22 अगस्त से 1 सितंबर तक बड़ी मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें शुरू करने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों हवाई जहाज़, जंगी जहाज़, टैंक और हज़ारों फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। मशक़ें वाशिंगटन और सिविल के बड़े पैमाने पर तरबियत को बहाल करने के अज़्म की निशानदही करती हैं, जो कोविड-19 की वजह से मुतादिद मरतबा मनसूख कर दी गई थी। इन मशक़ों को अलची फ्रीडम शील्ड का नाम दिया गया है। दरअसल ये जंगी मशक़ें शुमाली कोरिया की बढ़ती जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ी को रोकने की कोशिशों का मुश्तरका हिस्सा है। अब आखिर में एक मरतबा फिर नज़र हेडलाइंस पर। बिल्किस बानो ज़ियारती केस के कातियों की रिहाई का फैसला शर्मनाक, ख़वातीन की इज़्ज़त व एहतराम की बातें करने वाले वज़ीर आज़म मदाखलत करें, KTR का ट्वीट। आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के तहत आज रियासत भर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। तेलंगाना भवन में MLC कविता ने किया खून का अतिया। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का महंगाई चौपाल आज से शुरू। मोदी हुकूमत की नाकामयाबियों को उजागर करेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र के डोंडिया के पास मुसाफिर ट्रेन पटरियों से उतर गई, 50 से ज्यादा जख्मी, इमदादी काम जारी। BBN न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे।
जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।